mother. Let us love her, protect her, and give back more than what we took from her. A very good morning to all of you. Today I, Sneha Sharma, the member of class 10B, is over here to anchor the program on World Earth Day. So, as you know, we are here to celebrate World Earth Day, and firstly I would like to give a little information about it. Earth Day is an annual event on April 22 to demonstrate support for environmental protection. First held on April 22, 1970, it now includes a wide range of events coordinated globally by Earth Day organization, including 1 million people around the world in more than 193 countries. The official theme for 2022 is Invest in Our Planet. Today we are celebrating this day in our school to aware you all about the importance of protecting our Mother Earth. As you know that students are the foundation of a strong nation, and an aware student is the foundation of a strong, independent and developed nation. On Earth Day 2020, over 100 million people around the world observed the 50th anniversary in the world, which is being referred as the most biggest mass mobilization in history. Now this was a little information about it, and for further information, I would like to call Komal Joshi. Your effort is what it will cost to keep our precious earth clean by living a lifestyle that's green. The time to take action is now to restore what has been damaged somehow. We should stand on the brink of too late, but there's still time to change our fate. Respected Principal Sir, Vice Principal Sir, teachers and all students, a very warm and a fresh good morning to one and all present here. Today I am here to present a short speech on the occasion of World Earth Day. World Earth Day is celebrated on 22 April annually. In the year 1970, Gaylord Nelson first introduced the concept of World Earth Day. In year 1969, the aquatic and terrestrial environment was highly damaged by the oil explosion. After this sad event, nationals decided to commemorate a day dedicated to nature. The trend of celebrating this day was first popular in the United States only, but later on the world adopted it. Around the globe, more than 193 countries celebrated on a grand level. The celebration involved environmental preservation activities. Universally, Earth is the only planet where life dwells. Due to depletion of natural resources, the need for celebrating a day for the Earth is necessary. Deforestation, global warming, pollution, etc. are the major issues of world. For fighting against these issues, celebrating Earth Day is necessary. In desire for a prosperous life, man-made activities are depleting the quality of environment. Taking a positive approach and suggesting steps people can take to begin lessening their impact on environment, and can also inspire everyone to make a meaningful change in the way they live. At last, I want to wind up by saying tonight, every day is Earth Day, or at least it should be. We should take steps every day to save our planet. Don't you agree? Reuse, reuse, recycle. Think of how much we throw away. Our Earth can only hold so much crap. One day there will be the time to play. Thank you. And I would like you to give her a big hand of applause. मिलकर एक कदम बढ़ाया है उस माता के लिए जिन्होंने हमें बनाया है। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने पृथ्वी को बचाने के लिए कई तरह से साथ दिया है। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रिया कोरंगा, कक्षा 10वीं की छात्रा को, जो आपको प्रकृति के मानव प्रहरियों के बारे में बताएगी। रिया। नमस्कार, मेरा नाम रिया कोरंगा है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज आप सभी के समक्ष प्रकृति के कुछ मानव प्रहरी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर पर्यावरण को सुरक्षित किया है। प्रकृति के मानव प्रहरी प्रकृति और पर्यावरण को उनकी मूल नैसर्गिक अवस्था में बनाए रखने में वन, आर्द्रभूमि, पहाड़, समुद्र, मैंग्रोव जैसे पर्यावरण प्रहरी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। आइए हमारे देश में प्रकृति के ऐसे कुछ खास मानव प्रहरियों के बारे में जानें। अमृता देवी ऐसी साहसी भारतीय महिला नहीं है जिन्होंने वृक्षों की रक्षा के लिए न केवल अपना बल्कि अपनी 3 लड़कियों की जान की बाजी भी लगा दी।
यह वास्तविक घटना जोधपुर राजस्थान जनपद के खेजंडी गांव की है। 1730 ईस्वी में मारवाड़ जोधपुर के शासक महाराजा अभय सिंह अपने नए महल के निर्माण के लिए खेजड़ी के वृक्षों को काटना चाहते थे। उस रात अमृता देवी को इस बात की भनक लग गई और वह राजा के सैनिकों और काटे जाने वाले पेड़ों के बीच में आ गई और पेड़ों से लिपट गई। सैनिकों ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए धन का प्रलोभन भी दिया, लेकिन उन्होंने यह अस्वीकार कर दिया। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उसी समय उन्होंने स्वयं की और अपनी 3 बेटियों आंसू, रत्नी और भागू की जान की आहुति दे दी। आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक उस घटना के दौरान कुल 363 जाने गई। अमृता देवी के सम्मान में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले को राजस्थान सरकार के द्वारा अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 को टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के मरोड़ा गांव में हुआ था। भारत में उनकी पहचान एक पर्यावरणविद और चिपकू आंदोलन के अगुवा के रूप में है। 1970 के दशक में हिमालय के जंगलों को बचाने के लिए उन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2009 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। गौरा देवी। गौरा देवी चिपकू आंदोलन की एक अहम कड़ी थी। 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के रेनी नामक छोटे से गांव में गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं का एक समूह 3 दिन में 3 रात जंगल में पेड़ों से चिपककर खड़ा रहा और इस प्रतिरोध के द्वारा पेड़ों को काटने से रोका। उन्होंने बहादुरी का परिचय देते हुए कहा कि हमने इन पेड़ों को गले लगाया। अगर वे इन पेड़ों को काटना चाहते हैं तो पहले कुल्हाड़ी उन महिलाओं के शरीर पर चलनी चाहिए। यह सुनकर पेड़ काटने आए लोग पीछे हट गए और गौरा देवी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। ये तो चंद उदाहरण है प्रकृति के मानव प्रेमियों के। इनके अलावा देश दुनिया में असंख्य लोग हैं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में अपना जीवन समर्पित कर दिया। पर्यावरण को लेकर इनकी उदात्त भावना सम्मान के लायक। Resources and many of the species are now in extinct. So to preserve our Mother Earth, this day is being celebrated. तो इस दिवस को मनाने का औचित्य यही है कि हम पर्यावरण के संरक्षण के प्रति अपने दायित्वों को पूरा निभाएं। आप उत्तराखंड राज्य से हैं तो आपने चंडी प्रसाद भट्ट जी, सुंदरलाल बहुगुणा इत्यादि का नाम सुना होगा, जिन्होंने गौरा देवी, जिन्होंने उत्तराखंड में वनों की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत सराहनीय कदम उठाया और ये अभियान 1972 में प्रारंभ हो गया था। और हमें याद है कि हमारे जो वर्ल्ड अर्थ डे है ये भी 1970 के आसपास के दशक में प्रारंभ हो गया था। इसी के साथ साथ आप जानते हैं कि राजस्थान को हम बहुत ड्राई लैंड कहते हैं और वो भी कि एक बहुत हरा भरा प्रदेश कभी हुआ करता था, क्योंकि आप जानते हैं कि राजा लोग हमेशा अच्छी जगह निवास करना चाहते थे। तो आप कल्पना करो कि वो राजस्थान आज का जैसा नहीं था। दैट राजस्थान वाज फुल ऑफ फॉरेस्ट। उस समय एंटरटेनमेंट का साधन कोई मूवी या कोई स्पोर्ट्स नहीं था। हंटिंग वाज ऑल्सो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो राजा लोग वहां पर रहा करते थे, शिकार करते थे और उसके बाद जब धीरे धीरे देखा कि वहां के वनों का सफाई हो गया तो वन ऑफ द राजस्थान कम्युनिटी, जिनको हम कहते हैं वैष्णव, बिश्नोई, दे इमर्ज। बिश्नोई संप्रदाय आगे सामने आया। उन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए 29 पॉइंट्स बनाए, इसलिए उनको 20 बिश्नोई का नाम समझ रहे हैं 20+9, ये शब्द वहीं से निकला हुआ है।